Hello everyone, myself Avnish Kaur from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. And now we are going to discuss the next gland, that is about the pancreas. The remaining glands are pancreas. Then there are two other glands. One in the case of male, that is known as testes. Testes, not actually the only the gland. It is the mixed organ. As the pancreas, we will discuss the mixed gland. So testes will be the mixed organ, and also in the case of female, the ovaries also play a role as the endocrine gland. तो ये तीनों ग्लैंड के बारे में अभी आपको पढ़ना बाकी है. So first of all, let us discuss about the next gland after the adrenal gland, that is the pancreas. So let us know about the pancreas. So pancreas is a single gland in our body, and this gland is also known as mixed gland. This gland is also known as mixed gland. So it is called mixed gland because the gland consists of two parts or two regions in its structure, and one of the region is endocrine in nature, while the other part is the exocrine in nature. Means one part of the gland release their secretion in duct, while the other part of the gland release the secretion in the so the gland consists of ductless as well as duct region, so it is also known as the mixed gland. So first of all, let us draw a diagram to represent the various part of the pancreas in the form of two regions, that is the exocrine as well as endocrine part. So first of all, we need to know about the location of the pancreas. First topic we have to discuss, that is location. So location of pancreas, it is located just below and parallel to stomach. It is present just below and parallel to stomach in the loop of duodenum. Duodenum is the part of small intestine just after the stomach. The next part of alimentary canal, which is the largest part of alimentary canal, which is the small intestine. And so small intestine is the largest part of the alimentary canal, and the first part in which the stomach open, which is the duodenum. Okay, duodenum is the first part of small intestine, and duodenum forms a loop just after the stomach. Duodenum forms a loop. A loop of duodenum, and in the loop of duodenum, a duct open in the duodenum, the loop of duodenum, and that duct, it is the duct of pancreas. It is the duct of pancreas. Which make a leaf-like structure. pancreas होता है, यह एक leaf-like structure होता है जो कि loop of duodenum में पाया जाता है, just below and parallel to the stomach. Stomach के just नीचे जो है ये पाया जाता है, यहाँ पर loop of duodenum है, and in the loop of duodenum this duct open. The structure of this gland we have also discussed in the chapter of nutrition of life process. So here we will only mention the glandular part, that is to identify the glandular part or endocrine part of this gland. So inside the structure of pancreas, this is the pancreas.
जिसको हम हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। तो पैंक्रियास के अंदर जो है दो पार्ट होते हैं, दो रीजन होते हैं, जो एक जो है एंडोक्राइन पार्ट होता है और दूसरा जो है एक्सोक्राइन पार्ट। तो बात करते हैं एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पार्ट कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं डायग्राम में। तो इसमें आप देखेंगे these are a number of structure which is found inside the structure of pancreas, and they are known as isolates or Langerhans. Isolates of Langerhans. The maximum part of pancreas occupied by these isolates of Langerhans, and the isolate the name Langerhans came to existence on the basis of the scientists who discovered this structure inside the pancreas. पैंक्रियाज के अंदर वो इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे लैंगरहैंस, उसी के बेस पर इसको नेम प्रोवाइड किया गया है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के चारों तरफ भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज द सेल्स अराउंड द isolates of Langerhans, and these cells are known as acinar cell. These cells are known as acinar cells. So the two parts, that is acinar cells combinedly forms a group of cells which make the एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज। एसिनर सेल्स जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज बोलते हैं। मीन्स ये जो है स्पेशली एंजाइम सेक्रीट करने का काम करते हैं। बट जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स होते हैं, ये मास ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ पैंक्रियाज को बनाने का काम करते हैं। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं दे आर द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट्स को बनाने का काम करते हैं। सो द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज इट इज द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एंडोक्राइन रीजन। Isolates of Langerhans make the endocrine region of the pancreas. Means ये जो है हार्मोन्स का secretion करने का काम करते हैं पैंक्रियाज के isolates of Langerhans. Okay, so first of all then we are going to discuss that what are the number of hormones released from the isolates of Langerhans. तो बात करते हैं हार्मोन्स की। So isolates of Langerhans made up of two kinds of cells. There are two kinds of cells, alpha and beta cells. Together form the isolates of Langerhans. So the two cells, two types of cell, two kinds of hormone. So the first hormone, that is the insulin. Then the second is the glucagon. Insulin and glucagon, these are the two hormones released from the isolates of Langerhans, which is made up of two kinds of cell, alpha cell and beta cell. So insulin is secreted from alpha cell, from beta cells, while glucagon released from alpha cells of isolates of Langerhans. Isolates of Langerhans के बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है और अल्फा सेल से करते हैं ग्लूकेगॉन, एंड बोथ टुगेदर रेगुलेट द ब्लड लेवल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करने का काम करते हैं। मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बात करते हैं कि कैसे जो है रेगुलेशन करते हैं ग्लूकोज का। तो इंसुलिन जो होता है स्पेशली जो है होता है हाइपोग्लाइसीमिक। दोनों का फंक्शन जो होता है वो अपोजिट फंक्शन प्ले करते हैं, अपोजिट रोल प्ले करते हैं। इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसीमिक
that means it is responsible for hypoglycemia or decrease of sugar level in the blood में शुगर लेवल को डिक्रीज करने घटाने का काम करता है। और ग्लूकागॉन जो होता है इज हाइपरग्लाइसेमिक। Glucagon is hyperglycemic, means it is responsible to increase the blood sugar level. So ये कैसे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और घटाते हैं? तो देखिए, इंसुलिन जो होता है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है ड्यू टू डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द फूड। फ्रूट का डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज बनता है, लास्टली आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाता है। तो ऐसे में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड गिव मैसेज और इंफॉर्मेशन टू द सेल्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास टू secrete insulin. So insulin when released in the blood, it affect the two kinds of cell. One is the two organs is affected by insulin. One is the liver and the second the number of body cells. So insulin induces the process of glycogenesis. Glycogenesis एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना मीन्स ग्लूकोज जो है स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। स्पेशली एनिमल में आपको बताया क्या होगा कि फूड का स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड दिस प्रोसेस इज इंड्यूस्ड बाय द इंसुलिन। ये इंसुलिन के द्वारा इंड्यूस किया जाता है। अलॉन्ग विद द ग्लाइकोजेनेसिस इंसुलिन आल्सो enhance or stimulate the consumption of glucose by body cell. बॉडी सेल के द्वारा इसका कंजम्पशन को भी इंक्रीज करने का काम करता है। तो इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, लेवल मेंटेन हो जाता है। बट द अपोजिट फंक्शन इज परफॉर्म बाय ग्लूकागॉन व्हेन देयर इज लेस ग्लूकोज इन द ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जा रहा है तो ऐसे केस में इंसुलिन जो है बहुत ही लेस सेक्रीट होगा। दूसरा हार्मोन रिलीज होगा फ्रॉम द अल्फा सेल ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और वो हार्मोन कौन सा होगा? ग्लूकागॉन। एंड ग्लूकागॉन लीड्स टू द ग्लाइकोजिनोलिसिस एज वेल एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, दो यहाँ पे तीन प्रोसेस है। एक आपका है ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा है ग्लाइकोजिनोलिसिस and third is gluconeogenesis. Glycogenesis, glycogenolysis and gluconeogenesis. तो ये these three process are regulated by the insulin as well as glucagon. तो इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन जो है ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज करने का काम करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है? इंसुलिन जो है एक्ट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, और ग्लाइकोजन क्या करता है? इन दोनों के ऊपर अफेक्ट करता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस को इंक्रीज कर देता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज कर देता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन जो कि स्टोर है लीवर में, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लाइकोजन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। व्हाइल द अदर प्रोसेस दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस और नॉन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट ऑफ आवर बॉडी में जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं लाइक अमीनो एसिड, फैटी एसिड, तो ये सभी जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट है। अमीनो एसिड प्रोटीन होता है, प्रोटीन का कंपोनेंट है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये जो है फैट का कंपोनेंट है। तो जब अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये प्रोसेस किसके द्वारा यूज किया जाता है? ग्लूकागॉन के द्वारा किया। सो इन दिस वे द level of glucose becomes regulated in our blood by the help of these two hormones, insulin
secreted from beta cell and glucagon from alpha cell of isolates of Langerhans of the pancreas. तो इस तरह से आपको जो है ये हार्मोन्स के बारे में पता चल गया और इनके फंक्शन के बारे में। फंक्शन अगर पूछा जाता है तो फंक्शन आप क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द पैंक्रियास इज टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को ये रेगुलेट करने का काम करते हैं, दोनों ही हार्मोन्स मिल करके, जो कि पैंक्रियास से रिलीज होते हैं फ्रॉम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब बात करते हैं तो ये ग्लूकोज और शुगर की को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस मीन्स जो मेन फंक्शन होता है दैट इज ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। इस जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है तो ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, और अगर रिक्वायर्ड नहीं होता है, ओवर हो जाता है, तो ये ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करने का भी काम करते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ऑफ ब्लड के अकॉर्डिंग जो है ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करते हैं, एंड दैट इज नोन एज ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस जो टर्म है इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी होमियोस्टेसिस आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल बॉडी के अंदर भी होमियोस्टेसिस रहता है, बॉडी के बाहर भी होमियोस्टेसिस रहता है। जैसे आप देखते हैं अगर बिहेवियरल वे में होमियोस्टेसिस का एग्जाम्पल देखा जाए तो देखिए गर्मी के सीजन में टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का वो ज़्यादा रहता है, तो ऐसे केस में हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी को कूलनेस प्रोवाइड करें। ओके, ऐसे ही ठंडी में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, तो ऐसे में हम ऐसे वार्म क्लॉथ पहनते हैं जिससे हमारे बॉडी को ठंडी नहीं लगे। मीन्स हम अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अपने आप को बदलते रहते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या होमियोस्टेसिस बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जो है होमियोस्टेसिस क्रिएट करते हैं। तो ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इज अ टाइप ऑफ होमियोस्टेसिस इनसाइड आवर बॉडी, और ये होमियोस्टेसिस किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है? दो हार्मोन्स के द्वारा, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के द्वारा। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की कि ये जो डिसऑर्डर्स अभी हम इसके पहले भी जितने भी ग्लैंड्स पढ़े हैं उसमें मोस्ट ऑफ द ग्लैंड से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड जो है हम कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में, एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे भी कुछ डिसऑर्डर अगर हमारे बॉडी में हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एबनॉर्मल वे में सिक्रीट हो रहे हैं, ओके, बन रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारे बॉडी में कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो डिसऑर्डर्स जो होता है, disorder is related to this. It is due to the hyperglycemia, long hyperglycemia, long hyperglycemia is the reason for the disorder, cause of disorder, and it leads to a complex disorder, leads to a complex disorder, and this complex disorder is known as the diabetes mellitus, called diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a complex disorder due to long hyperglycemia. मीन्स अगर लंबे समय तक रेगुलर जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है, हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ, हाइपो मीन्स घटा हुआ, तो अगर लॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल लंबे समय कंटिन्यू जो है ब्लड में इंक्रीज दिखा रहा है, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जो कि आज के डेट में आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री सफर्ड फ्रॉम दिस डिजीज और डिसऑर्डर, एंड दिस डिसऑर्डर इट इज ड्यू टू द लॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, एंड लॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया इट इज कॉज्ड ड्यू टू
lack of a hormone which is known as insulin. Insulin lack or less secretion of insulin, it is a cause of long hyperglycemia in our blood. हमारे ब्लड में जो है लॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया के लिए जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंसुलिन. ओके, लेस सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, जो कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो उसमें से जो ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज को ओवर सिंथेसिस को क्या करने रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है. और अगर हमारे पैंक्रियाज से इंसुलिन बनना बंद हो जाए या लेस सेक्रेशन हो, वैसे केस को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, एंड विच लीड्स टू अ डिसऑर्डर व्हिच इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस. उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस. तो ऐसे केस में होता क्या है कि डायबिटीज मेलिटस होगा अगर किसी को, तो हम पहचानते कैसे? तो देखिए होगा क्या, दो चीज़ से पहचानते हैं, एक जो है यूरिन टेस्ट से और एक ब्लड टेस्ट से. तो यूरिन में क्या चीज़ दिखाई देगा? यूरिन टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट. यूरिन टेस्ट से हम जानते हैं कि ये डायबिटीज मेलिटस है या नहीं. तो यूरिन टेस्ट में क्या दिखाई देगा? द ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का अमाउंट दिखाई देगा यूरिन में. तो ऐसे केस को नॉर्मली आप एक्सक्रीशन में मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जब आपको बताया गया था तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि ग्लूकोज जो है रीअब्जॉर्ब होकर के वापस ब्लड में चला आता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. इसका मतलब ये कि यूरिन में ग्लूकोज जाता नहीं है, बट ओवर लॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया के केस में क्या होगा? मीन्स ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल जाते होगा वैसे केस में जो है ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा. ग्लूकोज जो है एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज होगा और यूरिन के थ्रू ही पास होगा. तो पहला चीज़ ये चीज़ दिखाई देता है. और ब्लड टेस्ट में क्या दिखाई देगा? ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट में भी पहला चीज़ तो ग्लूकोज को दिखाई देगा. उसके अलावा जो है हार्मफुल कंपाउंड दिखाई देगा जिसको हम कीटोन बॉडी, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी. तो ग्लूकोज तो वैसे बहुत हार्मफुल नहीं है, बट कीटोन बॉडी जो है एक टॉक्सिक केमिकल होता है और ये टॉक्सिक केमिकल हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. तो इस तरह से जो डायबिटीज़ डिसऑर्डर होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल डिसऑर्डर होता है. तो ये आपका जो है चैप्टर ये टॉपिक पैंक्रियाज आपका कंप्लीट हुआ. इसमें हार्मोन्स, लोकेशन और इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन और डिसऑर्डर्स है इसके बारे में आपको बता दूँ.